सर पीछे सर नॉइज आ रहा है और आपकी आवाज सर हल्की आ रही है थोड़ी। Yes, sir. यस सर। Better. अब सही है। rows and columns, right? And then एक्सेस एलिमेंट कैसे करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, 0 1 1, 0 है तो उसमें 1 and उसमें 1, right? रो कॉलम you need to identify. So individual specific element आपको एक्सेस करना है तो you can go as a row 0th and first, again उसमें 0th and first, and then उसमें 0th and first. So likewise you can identify uh, which row, which column, which index. Okay. uh, yes, no. Okay. So what you can do is, suppose if you are not clear with how to find out these numbers,
what you can do is simply which number you want to get output as. Okay, let's take example, you want to print output of a 3, right? So first identify which column is it. Is it this is the 0 and this is the 1? So write down 0 first here, then comma, then go outside. Outside means curly bracket. तो इन दोनों का curly bracket में ये क्या है, this is 0 and this is first, right? So you can write it first here, then comma, then again, फिर इसके बाद we have come here, इसका कंपैरिजन चल रहा है अभी, राइट? तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, 0th है और ये क्या है, फर्स्ट है, राइट? तो ये क्या आएगा, 0, 1, 0. तो इससे आपको आंसर ये आएगा. I think this is just a convention how you can get an element from a metric. आपको exactly ये use, you will hardly use this because people have, this is bit complicated when you have higher order dimensions. So now अभी हम 2 dimension है इसलिए we are able to write. तो इससे ज़्यादा dimensions रहेंगे तो वो लिख नहीं पाएंगे. So that's not widely used. ये widely use नहीं होता कहीं पे भी, but you should know कि कैसे how it has been calculated. There is nothing complex here. You only have to write indexes, 0th, first 1 0 1 0, whichever index that element has. Okay. There's one more. All colon indicates all rows or all columns, whatever the information you want to get. Such as instead of mentioning 0 and 1, what I can mention is all elements. So what it will give me, it will print all, whatever inside there, all these elements it will print. Whatever inside this, all these elements it will print, right? It will not print a specific element. So this is nothing but a reshape and flatten. Flatten as in you can, if it is a row and column, it will convert everything into a one single column. A reshape, we have seen a arrange. Arrange is nothing but number generation. It's called a range 0 to 51. Similarly, 1 to 51 is like 1 and it will go till 50. It can run. Let us see. Sorry, NP is not defined means I need to call the library first, right? So import the library and then use. So now I will use it here. You can see it starts from 1 and ends at 50 because range function start end -1. Hope you remember that's the range function. So same way you have a range as an array range, and then reshape is nothing but it will change how many elements are there, how many columns are there and how many rows are there. So you can see it here. Instead of what I did is we printed in one single column, as in only one matrix, one dimensions, what you can say. Here I used a multi-dimensional. What I did is I created a 10 rows and then 5 columns. 10 rows as in you can see here 1 2 3 4 5 6 like that, and 5 rows 1 2 3 4 5. Okay, so that is nothing but a reshape. You can change the shape of your metric here. Like where it is used, it is used in generally when you have to convert different dimensions, like you have 5 6 variables in your data set or in a column, and you need to combine all those into a 2 variables or 3 variables. So that time people use such methods called reshape. So it's called a dimensional reduction or a dimensionality reduction technique. What here we are doing is we are simply using a reshape function, but in mathematics or in data science it is used along with some statistical methods. Then there are some statistical techniques to reduce the number of dimensions.
So that is just one of the example. As in this is a base of for that concept. Okay. Then flatten is nothing but it will remove all the rows and columns, put it into only one complete dimension. As in x is equal to 1 2 3 to 50 100 आपने जितना भी बनाया है उतना सब कुछ it will organize into one dimension as in x. Okay. So next is copying of arrays. हमने देखा था यहाँ तक reshape and all, and suppose you want to, next topic is about the copying of a data, copying of a array. So here also, as earlier we have seen deep and shallow copy, same concept exists here also. मान लीजिए आपने एक अरे डिक्लेयर किया ARR1 करके, np डॉट अरेंज क्या करता है 0 से 4 तक के नंबर एक अरे में प्रिंट करेगा और अरे में स्टोर करेगा ARR1। उस अरे को मैंने डॉट कॉपी करके फंक्शन यूज किया है। So can anybody tell me what is the dot copy? Is it a function? It's a copy function, and what it does, it deep copy or shallow copy, which copy it will create? deep copy. Okay, good. And what is the difference between deep copy and shallow copy? Sir, deep copy never change, and the shallow copy every time the variable change, and it जब भी सर वेरिएबल चेंज होगा तब तक वो चेंज होती जाएगी। Okay, is it a variable or is it a source? सोर्स जैसे सोर्स चेंज होगा। Then you need to be careful because source is different and variable is different. ओके So सर। every time source changes, the copy also changes in case of shallow, but in case of deep copy, it doesn't change. ओके सर। Okay, so हमने कैसे we've seen what is array, then how to create an array, then how we can access the array. So now next step is becomes मतलब indexing and slicing आ जाते हैं सर इसमें। the next step becomes हमारे operations, right? So all the operations, and then becomes some inbuilt methods है तो inbuilt methods, and this is how we study the each and every data type, right? वो आपने पहले पाइथन में देखा होगा तो if you would have recognized the pattern. So what we do is we study about declaration, creation of that data type, declaration, फिर उसके एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, फिर उस पर कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं क्या, देन फिर उसके बाद हमने मेथड्स वगैरह देखा थे। उसके बाद इफ एनी स्पेशल functions are applicable such as list comprehension वगैरह, so that we have covered. So यही सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। we have seen arrays को कैसे डिक्लेयर करना है, उसको कहाँ यूज करना है, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करना है, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसमें। So all those things we have seen. So now what we will do is we will cover some mathematical operations, some logical operations, and then some methods. Okay, and in this there is one important concept is in the array which is called broadcasting, and this concept we will use it in the pandas, right? So what is the broadcasting that we'll see. Okay, so what we'll see arithmetic operations and arithmetic as well. So this is a range function which creates 0 to 4 numbers, right? Array create करेगा ये 0 to 4 का। Then definitely there are some इनबिल्ट फंक्शन सच एज मैक्स, मेन, सम, ये हमने देखा है जो लिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट? सो सेम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल np विच इज numpy डॉट मैक्स, और मैक्स के अंदर ये अरे पास कर सकते हो, इट विल गिव अ मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? दिस इज मेन सम में आप पास करोगे तो इट विल गिव लाइक summation of all the numbers. Okay, so inbuilt functions sum max min, और बहुत सारे फंक्शंस है, यू कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन related to
numpy के related जो भी documentation है, I guess there is a link at the top. You can refer that documentation. Like you can refer here some documentation and you will get the few more functions, but whatever is required for us, I have covered it here. Okay, so again arrange, then sum निकाला है हमने, we have created 1 to 50 and वो पूरे अरे का हमने सम निकाला है, right? Then arrange function देके we have used a reshape 10 column and rows. Then there is again sum option, but यहाँ पे देखिए sum along the axis 0 is, there's one more operation I have given it here, क्योंकि if array is like this, इसका समेशन तो आप डायरेक्टली कर जाओगे, एज इन 1 2 3 4 5 6 50 तक एडिशन करना है आपको, देर इज नो अदर ऑप्शन हियर टू ऐड. बट व्हाट इफ डेटा इज इनटू अ डबल डायमेंशन एज इन एक्स एंड वाई, और जहाँ पे रो एंड कॉलम्स है, तो उस केस में कैसे ऐड करना है? कैन आई ऐड ऑल दिस थिंग्स? पॉसिबल, बट this is different, this is different, this is different, this is different, right? क्योंकि ये लिस्ट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट किया गया है, राइट? एंड दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. जैसे हमने देखा था एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल और कॉलम के नाम, तो वो जो कॉलम के नाम है उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा अरेंज करते हैं नमपाई में. तो सिमिलरली आपको रो के अलोंग और कॉलम के अलोंग कुछ एडिशन करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. So how? You need to pass a argument called axis, AXIS, which is axis is equal to 0. 0 means rows. 0 as in operations. Just a second. यहाँ पे see, from here you can see the axis 0 मतलब ऐसे कैलकुलेशन होगा, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, एंड एक्सिस 1 इज कैलकुलेशन ऐसे होगा, एज इन विल सी हमारे केस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो अब एक्सिस 1 देखिए, यू कैन कैलकुलेट ऑल द नंबर्स. वर्टिकली आप अचीव कर सकते हो, एज इन एक्सिस 0 कैसे इंडिकेट किया था, लाइक दिस, राइट? एक्सिस 0 ऊपर ऐसे इंडिकेट किया था, सो इसके अलोंग एडिशन होगा, एंड एक्सिस 1 इज दिस. सो if I say it is column and row, you will get confused because ये actual column है, हर एक column का मैं addition कर रहा हूँ, and this is a row, but आपको आउटपुट में सिर्फ कॉलम के 5 मिलेंगे. देखिए एक्सेस 0 which leads to summation और addition from top to down, as in आप बोल सकते हो कि वर्टिकल, तो ये इसका एडिशन मिलेगा, इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन, ये सब लोगों का. You will see like this here 235 275 265. और सेम एक्सिस 1 हमने जो देखा था दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट? मतलब ऐसे समेशन होगा इनका, ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, राइट? लिस्ट. सो इनके अलोंग उसका समेशन होगा, देखिए 15, राइट? 40 15 40 65 240, इसका समेशन देखिए, right? This is 15 written here, this is 40 written here. So axis 1 you can say it's a row calculation, but आप horizontal and vertical ऐसे याद रख सकते हो. axis 0 is nothing but a x axis, और vertical axis 1 is nothing but a y axis, which row के which we can use it for the row, ये याद है ना? This is nothing but x और ये y रहते हैं. So you can say x is always 0 and y is always 1. तो आपको axis 1 लिखना है तो you will get like this, axis 0 लिखोगे तो ऐसे आप you will get the calculation like this, right?
Then not only the summation, you can use different such as mean, square, square root, ये भी निकाल सकते हो डायरेक्टली. So array वन मतलब इसका मीन कैसे निकालना है, यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली np डॉट मीन और उसमें ये अरे पास कर दीजिए. एंड नॉट ओनली दैट, आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो np डॉट sqrt स्क्वायर रूट. तो वो अरे में जितने एलिमेंट्स है और ऑल द एलिमेंट्स इट विल टेक अ स्क्वायर रूट. मतलब वन का स्क्वायर रूट वन रहता है, ओके, फोर का स्क्वायर रूट टू रहता है. देखिए यहाँ का टू है, फोर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट उसने टू लिखा है डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू इंडिविजुअली, आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं है और आपको कहीं पे लूप वगैरह यूज करना नहीं है. डायरेक्टली इट विल कैलकुलेट ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑन दैट डेटा, राइट. एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी, लॉग आपको निकालना है तो लॉगरिथमिक फंक्शंस रहते हैं लॉग, तो log also you can take it, right. Not only this but I want you to observe here, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल फंक्शन यूज कर रहे हैं. इन केस ऑफ log हो गया, स्क्वायर रूट हो गया. हैज आई रिटन एनी लूप, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ क्या इंडिविजुअली कि ओके फर्स्ट आप एक में तो एक का स्क्वायर रूट निकालो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर उसके बाद वापस इंडेक्सिंग चेंज करके आई एम एक्सेसिंग दिस एलिमेंट्स. एम आई डूइंग लाइक दिस? नो, राइट. पाइथन अपने आप कैलकुलेशन कर रहा है तो वो पहले यहाँ चेक करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये होने के बाद फिर ये तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट है सबके लिए स्क्वायर रूट और वो फंक्शन अप्लाई कर रहा है. आपको इंडिविजुअली नंबर को एलिमेंट पास नहीं करना पड़ता जैसे हम पाइथन में करते थे. सो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. लाइक वो ब्रॉडकास्ट इज नथिंग बट आप कहीं पे भी यू आर मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो और वीडियो देख रहे हो, वही वीडियो आप टीवी पे चला रहे हो, स्क्रीन पे चला रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्ट. आप लार्जर ऑडियंस और बेटर उसका परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हो और लार्जर ऑडियंस के लिए आप वो अवेलेबल कर रहे हो, राइट. तो सिमिलरली स्क्वायर रूट क्या था हमारा, एक ही नंबर. इन द पाइथन वी हैव लर्न ओनली वन नंबर इट यूज टू टेक स्क्वायर रूट फंक्शन, बट it is extrapolated to all the numbers in that list or in the array, right? So that's why it is nothing but, that's why it is called a broadcast. मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब मैंने शूटिंग तो यहाँ की है बट आई एम पब्लिशिंग इट ओवर इंटरनेट सो दैट सब लोग देख सके, राइट. आई एम पब्लिशिंग इट ओवर सम फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो दैट सब लोग देखे. दैट इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्ट. लार्जर ऑडियंस के लिए आप जो आपने काम किया है और जो वट एवर आपने प्रोसेस किया है उसको लार्जर ऑडियंस के लिए आपने अवेलेबल करके दिया. सो सिमिलरली हमारा जो फंक्शन है कॉल्ड स्क्वायर रूट, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली फॉर वन नंबर, बट numpy has made an arrangement so that you can extend that feature or function to all other numbers or elements in the array. So that is nothing but a broadcast operation. मतलब आइडियली आपने जो पाइथन पढ़ा है वो उसमें से क्या होता है कि इंडिविजुअली ये कैलकुलेट होगा, राइट. देन आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ओनली वन फंक्शन, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, तो ऐसे अलग अलग नंबर्स के लिए वो वर्क हो रहा है. सो दैट इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्ट. क्लियर, सबको समझ में आया. पांडास एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे बना हुआ है ब्रॉडकास्ट के. So pandas में आपको वापस we will go come to that point. That's why we hardly use any loops in pandas, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए लूप्स की ज़रूरत नहीं है. ऐसे कैलकुलेशन डायरेक्टली हो रहा है, एक फंक्शन लिखो उसमें वो पास कर दो पूरा आपका जो अरे है और पूरा टेबल, डायरेक्टली कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा उससे. ना आपको कुछ लूप यूज करना है, फॉर लूप, वाइल लूप, ना आपको कुछ फंक्शन लिखना है, वो कॉल बैक करना है, वो स्टोर करना है, कुछ भी नहीं. डायरेक्टली आप और एक और लिस्ट को पास कर सकते हो, है ना. सेम उसका ही एप्लीकेशन है कॉल्ड np डॉट. देन वी हैव पास्ड array.
same np.max. So next is what we have done is we have calculated used axis. Axis 0 is nothing but vertical था, right? ऐसे हाँ, दिस इज नथिंग बट ये एक्सिस 0 है और ये एक्सिस 1 है, तो एक्सिस 0 के अलोंग आई कैन यूज द फंक्शन कॉल्ड मीन मैक्स। मतलब ये मैं क्या करूँगा, ये मेरा लिस्ट है, तो व्हाट आई विल डू इज इसके अलोंग कौन मैक्सिमम है ये मैं चेक करूँगा, और इसके अलोंग कौन मैक्सिमम है, इसके अलोंग कौन मिनिमम है, आई विल चेक। ओके, आवाज बाहर का आवाज बाहर। Okay, so sorry, we'll continue. So all the functions which we have studied, you can use it on the max, min, सारे functions आप use कर सकते हो array level पे। Not only this, sort, list dot sort करते थे, right? तो रो के along sort, important thing यही है, access नाम का जो ये पैरामीटर हम पास कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस यही है कि ये रो लेवल कैलकुलेशन करेगा या कॉलम लेवल। तो फंक्शन नॉट ओनली ब्रॉडकास्ट कर सकते हो बट वो डिसाइड भी कर सकते हो कि रो लेवल इम्प्लीमेंट करना है या कॉलम लेवल और रो लेवल एज एन एक्स और वाई, एक्स के एक्सेस और वाई के एक्सेस आपको नंबर डिफाइन करना है। ओके, मतलब ऐसे ऑपरेशन हो गया ऐसे, और वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, फिर आपका सम, मिन, मैक्स, सॉर्ट, राइट, उसके ऑपरेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सॉर्ट यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे रो लेवल सॉर्टिंग, कॉलम लेवल सॉर्टिंग। ओके, यू कैन एग्जीक्यूट एंड सी, यहाँ पे चेंज, ये देखिए ये पहला हमारा पुराना था, एंड देन रो लेवल एज इन रो पे कैसे चेंजेस हुए, 15, 89, 40, 138, 19, 165। सिमिलरली कॉलम लेवल, कॉलम ऐसे ये कैलकुलेट होगा, राइट? सो ऐसे कॉलम यू कैन कैलकुलेट। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे हमने ये इनबिल्ट फंक्शन देखे विच वी यूज टू डू इट अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज सम हो गया, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू वगैरह, नॉट इक्वल टू। तो ये ऑपरेशंस भी आई कैन परफॉर्म ऑन अ अरे, एंड these operation will also act as a broadcasting, एज इन देखिए मैंने अरे 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन, लाइक अरे को ग्रेटर देन 25 किया। पाइथन में कैसे होता था, इट यूज टू कंपेयर ओनली वन नंबर, और वो एज लॉजिकल ऑपरेटर है तो वो क्या करता था, ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देता था, राइट? मतलब इज 10 ग्रेटर देन 5, हम ऐसे करते थे, राइट? वी यूज टू रन अ फॉर लूप, हर लूप मतलब फॉर एक्स इन फॉर नंबर इन नंबर्स, if number is greater than, like greater than 10,
प्रिंट ये नहीं तो वो, राइट। बट वो सब कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन यूज़ अरे, एक अरे को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो अरे 1 ग्रेटर देन 25। So if you run this, you will get output directly. As in, first element true है या false है? False. False मतलब क्या है? Just a second. हाँ, यहाँ कर दूँ क्या या नहीं? हो जाएगा ना? ये मैं दोनों। Okay, is my audio better now? Yes, sir. Okay, good. चलो, सो जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर देखते थे, राइट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसका स्पेशलिटी क्या था कि इट ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। तो सिमिलरली वो हर एक नंबर को उठाता है अरे से और कंपेयर करता है इस 25 से। इफ़ ट्रू है तो वो ट्रू सेव करेगा, इफ़ फॉल्स है तो वो फॉल्स सेव करेगा अरे में डायरेक्टली। ना आपको लूप यूज़ करना है, ना आपको इंडिविजुअल एलिमेंट कॉल करना है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट और मेमोरी इफिशिएंट है numpy। और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप यूज़ नहीं होता, और लूप यूज़ नहीं होने का सबसे एडवांटेज क्या है, वो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, राइट, मेमोरी में। और हर बार वो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसमें वो नया नंबर डालेगा, फिर बाद में डिलीट करेगा, वापस नया नंबर डालेगा, राइट। So all those headache is minimized using NumPy. तो इसलिए NumPy is very fast, and one of the important why it is fast is because it supports a broadcasting operation. Broadcasting, as in you can do one operation or a one function on an entire array. You don't even have to call a array separately. Okay, ये देखिए, so for true and false, and इसका ही इन्वर्जन करना है, इन्वर्ट आपको करना है, तो यू कैन यूज दिस सिंबल कॉल्ड टिल्ड। सेम फंक्शन है, आई एम यूजिंग द सेम ऑपरेशन एंड आई एम रनिंग इट। सो व्हाट वी कैन डू इज, फॉल्स को वो ट्रू करेगा। दिस इज नथिंग बट अ नॉट ऑपरेटर, नॉट जो मैथमेटिकली नॉट रहता है, राइट, एनओटी, तो वो ऑपरेटर है यहाँ पे। सो और ये कहाँ, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टिल्डा, TILDA, इंडिकेट्स नॉट। और ये कहाँ पे रहता है, टैब के ऊपर। आपको की दिख रहा है क्या? क्या है टैब के ऊपर? तो टैब के ऊपर आपको वो ऑपरेशन दिखेगा, टिल्डा। ओके, बटन दिखेगा इसका। ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, इन्वर्जन ऑपरेशन।
और ये मान लीजिए आपने ये तो फाइंड आउट कर दिया सर कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। व्हाट इफ आई ओनली वांट ट्रू, ट्रू में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो कैसे उसको करना है? तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पास दिस अरे, अरे वन को मैं ट्रू एंड फॉल्स पास कर देता हूँ। एज इन जो जो मेरे ट्रू है, जहाँ पे मेरा ट्रू आया है उस ट्रू एलिमेंट को वो एज अ नंबर हाईलाइट करता है यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑल आर ग्रेटर देन 25 राइट, और इसीलिए वो सारे ट्रू है एंड सिर्फ ट्रू ही हाईलाइट हुए हैं इसमें। यहाँ का ये देखिए ये ट्रू, ये स्टार्ट होता है 26 27 से। ओके क्लियर सबको? दिस इज ऑल, ये हो रहा है ऑपरेशन क्या ब्रॉडकास्टिंग, बट ये ट्रू के पीछे वैल्यू हाइड हुआ है, फिर उस हाइड हुए वैल्यू को आप निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड अनमास्किंग, मास्किंग एंड अनमास्किंग। ओके मतलब ट्रू, कोई भी एलिमेंट को ट्रू और यहाँ से पास करोगे एज अ ट्रू, अरे वन ट्रू, तो वो उस एलिमेंट को अनमास्क करेगा, मतलब आपको बता देगा कि ट्रू क्या क्या है इसमें से, इन इन लोगों का आंसर ट्रू है। सिमिलरली अब 12 के साथ और टेक एनी वैल्यू नॉट एन इशू, अरे वन लेस देन 12, तो आपको पता चलेगा कि इतने ही सारे ट्रू है बाकी सब फॉल्स है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को आई विल पास इट इनटू माई अरे वन, कि माई अरे वन में स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे ये पास करना है, तो ये क्या होगा, मेरा अनमास्क होगा, से 1 2 3 4 12 11। ओके राइट, सो दिस इज नथिंग बट अ स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, वी आर नॉट पासिंग एग्जैक्ट नंबर्स बट वी आर पासिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज हियर। ओके सो नेक्स्ट इज अगेन माई आर ए वन, आप डायरेक्टली कंडीशन दे सकते हो, ये हम पांडास में बहुत बार यूज करेंगे। दिस इज नथिंग बट एक इंडिविजुअल कॉलम को उठा लो आप और उस कॉलम पे कंपैरिजन करो वेदर वैल्यूज इन दिस कॉलम आर ग्रेटर देन 10 20 50। ओके यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है मीन्स 44 कंपैरिजन हो रहा है सारे वैल्यू के साथ, फिर उसके बाद अनमास्क हो रहा है, बूलियन का अनमास्क, मास्किंग एंड अनमास्किंग, क्योंकि उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है, उसमें से मैंने सिर्फ ट्रू को निकाला है बाहर। क्लियर? सो आप मल्टीपल कंडीशन भी पास कर सकते हो, नॉट ओनली द सिमिलर बट एंड और ऑपरेशन हमने देखा था, कंपल्शन एंड ऑप्शनल। सो एंड ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो कॉल्ड कंपल्शन, और यूज कर रहे हो तो ऑप्शनल। सो आई कैन पास दैट हियर, my array1 is equal to, और my array1 में this is nothing but I want to do masking and unmasking right, that's why I'm passing it। my array1 में मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, उस ब्रैकेट के अंदर मैं कंडीशंस पास कर रहा हूँ। सो माई अरे वन में ऐसा कौन से एलिमेंट है जो ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड माई अरे वन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लेस देन और इक्वल टू 50 है, राइट। एंड का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी इन दोनों के बीच का ही चाहिए, तो दैट आई कैन फाइंड इट आउट। आप ये पास करो माई अरे वन में। ओके तो ये तो पहले ब्रॉडकास्ट होगा, ये सब सारे वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेगा, फिर ये सारे वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेगा, फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर है तो इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। आपको एक लिस्ट आएगा माई अरे वन जिसमें ट्रू एंड फॉल्स से लिख के होंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वो सारा लिखा हुआ आपको कन्वर्ट करना है एक्चुअल नंबर में, तो इसीलिए आपने माई अरे वन को वापस पास कर दिया वो बुलियन ऑपरेटर। ओके राइट, और आपको ये फाइनल आंसर मिला विच इज numbers greater than 44 and less than 50। ओके क्लियर सबको? और इसको ही एक्चुअली जो हम ये ऑपरेशन हो रहा है अंडरलाइंग, इसको ही वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस वगैरह बोलते हैं। वेक्टराइज्ड इज नथिंग बट आपको समझा ही होगा कि जो
जब मैं एक्सप्लेन करता था आपको कि ये कर्सर है और आ, ऐसा एक कर्सर नाम का वेरिएबल और क्रिएट होगा, फिर लिस्ट के सारे एलिमेंट वन बाय वन आपको वो कॉल किए जाएंगे टेम्पररी वेरिएबल में, याद है क्या, फॉर लूप पे, राइट। तो ये जो ऐसा एरो में दिखाता था, दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर। तो इसका प्रोग्रामेटिकल मीनिंग है वेक्टर, और वेक्टराइज्ड फॉर्म्स रहते हैं हर एक के, एज इन वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल भी वो इन मेमोरी इट विल गो टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एंड स्टार्ट फेचिंग वन बाय वन एलिमेंट। तो उसी से रिलेटेड लॉट ऑफ ऑपरेशंस आर देयर, एक्चुअली वेक्टराइज्ड डेटाबेसेस रहते हैं। आपका जो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल डेटाबेस है, जहाँ पे आपने इट यूजेस समथिंग एल्स, जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि नंपाई ब्रॉडकास्टिंग यूज करता है, वैसे ही एसक्यूएल माई एसक्यूएल कर्सर नाम का एक कर्सर नाम का एक कंसेप्ट है, और कर्सर नाम का एक व्हाट यू कैन से प्रोग्रामेटिक टर्म वो यूज करता है, ओके, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल प्रिंट करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे वेक्टराइज्ड और वेक्टर नाम का एक चीज है दैट मोस्टली पीपल यूज, मतलब सी प्लस प्लस में वेक्टराइज्ड क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशंस होते हैं, एज इन वेक्टर कंसिडर करके ऑपरेशंस होते हैं। बट स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल और एसक्यूएल में मोस्टली लोग कर्सर वगैरह यूज करते हैं। आपको इतने डिटेल में जाके उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कर्सर वेक्टर्स एंड ऑल, इतना इट्स नॉट रिक्वायर्ड फ्रैंकली, अनलेस एंड अनटिल आप डेवलपर नहीं हो। if you are a developer of that particular technology then you should know in and out, but you are not a developer, आप user हो, right, we are user of python, so it's good or it's enough information for us to know what are vector, what is uh, broadcasting operation, how it is performed. So what we can do is see not only the logical summation और arithmetic operation भी आप कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। कैसे, अरे वन प्लस फाइव ऐसा करोगे, अरे वन में क्या था, 0 1 2 3 4, तो वो प्लस फाइव हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में जाके ऐड करेगा। 0 + 5 1 + 2 + 5 3 + 5 5, इसका आंसर देख रहे 0, राइट। ये देखो आ गए। दिस इज नथिंग बट ब्रॉडकास्ट, मतलब एक सिर्फ वेरिएबल और अरे के ऊपर करो, अरे के सारे एलिमेंट इंक्रीमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली -2, तो हर एक एलिमेंट से 0 -2 -2, 1 -2 -1, 2 -2 0, 3 -2 1 एंड 2, ओके, क्लियर। तो बाय एंड लार्ज मोस्टली दिस इज व्हाट हैपेंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, फिर उसके बाद इनबिल्ट फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर उससे बुलियन, फिर बुलियन मास्किंग, ओके, यही हमने आज देखा है, दैट्स व्हाट मोस्टली पीपल यूज। सो और दो चार फंक्शन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाट इज दिस, क्विकली, व्हाट इज दिस, raise to operator, as in it raises the power, स्टार स्टार टू, यस ये है ना, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 3 का 9, 4 का 16, ये किया है ना हमने पाइथन में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पाइथन बेसिक, यस नो, आई गेस सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में ही हमने देखा है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डिवीजन क्या रहता है, राइट। इसमें हमने रिमाइंडर वगैरह देखा था, मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा था इसमें, जहाँ पे हमने रिमाइंडर और रिमाइंडर मिला था, राइट, बाकी, आणि त्याचा आपण कंपैरिजन वगैरह केलं होतं, और उसका कंपैरिजन किया था ऑड एंड इवन ढूंढने के लिए, कुछ याद आ रहा है, यस। So same, Yes. mostly operation works like that, there is no difference, not much difference here. Or array 1 plus array 3, you can add two arrays, 0 1 2 4 and 1 6 7, like
यू कैन डिक्लेयर अरे वन हमने डिक्लेयर किया था, अरे टी डिक्लेयर किया, एनपी अरे को उससे बनाना है, एनपी डॉट अरे, आई कैन पास ए लिस्ट, तो इसमें क्या बन जाता है, अरे बन जाता है। कैसे पता चलता है, बाय द वे यू कैन चेक अ टाइप, ओके, टाइप ARR3, सॉरी, टाइप से यू कैन सी np डॉट nd अरे, राइट, अरे वन हमने डिक्लेयर नहीं किया वहाँ, दिस इज द अरे वन, राइट, अरे थ्री, देखिए अरे वन एंड अरे थ्री यहाँ पे है, एज इन 0 1 2 4 अरे वन है, 6 1 यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है, दिस इज अरे थ्री। इसका भी एडिशन हो सकता है डायरेक्टली, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे आपको आउटपुट ऐसे मिलेंगे, देखिए, ओके, सेम, नॉट मच डिफरेंस। और ये ऐसे क्यों होता है, बिकॉज दीज आर अरे में सिमिलर डेटा टाइप्स है, राइट, और मोस्टली नंबर्स है, ओके, तो नंबर्स के बीच डायरेक्टली एडिशन भी कर सकते हो, नहीं तो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन यूज करके ओनली +5 लिखोगे तो भी हो जाएगा, राइट। यस नो समझ में आ रहा है ना, हाउ इट इज डिफरेंट, मतलब ये एक डेटा टाइप है, जैसे हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी वगैरह पढ़ते थे, वैसे ही ये हम वी आर लर्निंग दिस डेटा टाइप्स, राइट। So let us quickly go ahead. Uh, this is shape. आप shape भी define. This is nothing. Shape is nothing but row and column, right? कितने rows है, कितने column है. So that's how it is. 5 column, 5 column, 1 row, 5 comma 0 और 5 comma. It has not written anything. आपको समझ में आया होगा ये यहाँ से. You can see हमने rows and columns देखे थे. That is nothing but here. So नॉट मच अवेलेबल हियर, जैसे यहाँ पे एडिशन है, आप np डॉट ऐड कर सकते हो अरे वन कॉमा अरे थ्री, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एडिशन का, ऐड, सम, सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का डायरेक्टली ये भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हो आप सब्ट्रैक्ट करके। ये नमपाई मोस्टली यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए। सो मैथ्स रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें हैं, नॉट ओनली सर सम और सब्ट्रैक्ट, बट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सम टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, वो सब कुछ आप निकाल सकते हो एनपी नमपाई यूज कर नमपाई यूज करके, ओके। वो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएमएससी और रूट मीन स्क्वायर एरर वगैरह, एरर क्या रहता है, रूट मीन स्क्वायर एरर, R2 स्कोर, कन्फ्यूशियस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारा आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ numpy, because numpy is only built for statistical calculations or numerical computation or calculation mostly related to mathematics and statistics। तो इसमें बहुत सारे functions हैं, मोस्टली पीपल हु स्टडी द स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, उनको numpy बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि फॉर देम इट इज़ लॉट मोर यूजफुल, मतलब दे कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम और उनके रिलेटेड सारे ऑपरेशंस व्हाट वी से आर अवेलेबल इन द numpy। वैसे नॉट ओनली हमने जो 4 5 फंक्शन देखे, आप यहाँ पे देखिए, इंसर्ट, अपेंड, रीसाइज, स्प्लिट, राइट, स्प्लिट, तो सारे फंक्शंस हमने ऑलरेडी देखे हैं। सो आई डोंट वांट टू कवर अगेन एंड अगेन द सेम फंक्शन, यू कैन सिंपली क्लिक np डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे स्प्लिट कैसे होता है, इट इज रिटन हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, थ्री डायमेंशनल एक्सिस है, 3D एक्सिस, तो उससे रिलेटेड कुछ स्प्लिट, राइट, स्टैक, इट्स स्टैक, you can refer the example here, split x comma 3, okay। hi madam, जिमला जिमला जातो,
येतील ना. हाँ चालेल. ओके सो मोस्टली द फंक्शन वर्क सेम जो हमने देखा है, एंड we are not directly going to use a numpy. why? because numpy has आपने देखा होगा numpy में सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है कॉल्ड अरे, तो मोस्टली वी डील विथ अरे, बट इन रियल वर्ल्ड हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा इन अरे इज बिट डिफिकल्ट. मतलब मान लीजिए आपके पास 8 से 10 कॉलम है, वो 8 से 10 कॉलम को अरे में कन्वर्ट करना है, तो 10 डायमेंशनल अरे बनेगा, राइट? 10 डायमेंशनल अरे मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, फिर इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, फिर वापस 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे वो बड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर दिखेगा इतना मल्टी डायमेंशनल. और यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि विच कॉलम और विच रो आई एम हैंडलिंग, और आपको केयरफुली लिखना पड़ेगा सब कुछ प्रॉपरली. सो ये बहुत सारा इनकन्वीनियंस numpy के वजह से हो रहा था. That's why people have shifted toward pandas, or people have invented pandas. Pandas, but obviously pandas is bit slower than the numpy because it is not designed only for calculation. It has designed for different applications as well, which we will study tomorrow. Not an issue. Like we will study tomorrow. But I want you to understand कि why it is bit convenient, inconvenient using numpy. क्योंकि जब हम देख रहे थे कि एलिमेंट एक्सेस करना है इंडिविजुअल एलिमेंट, तभी हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि वेदर इट इज जीरो है, फर्स्ट रो है, कॉलम है, पहले का रो है, दूसरे का रो है, पहले ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट में, राइट? That's why it is very inconvenient, and mostly people use only for the limited scope. They don't use it for complete programming numpy. Okay? तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है. नॉट ओनली दिस, आपको पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, राइट? सो जैसे एज numpy is developed only for mathematical calculation, मतलब इसका कंसिडरेशन उतना ही है, तो उस कंसिडरेशन में उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस दे हैव मेड अवेलेबल. ओके, but we're hardly going to use it. Mostly we'll focus it pandas because first of all simplicity and convenience. वहाँ पे जाके यू डोंट हैव टू राइट मल्टीपल, मतलब शेप, साइज, कौन सा कॉलम, कौन सा रो, ये फाइंड आउट करना. यू डोंट इवन हैव टू डू दैट मच वर्क देयर. ओके, so hope everyone is clear with numpy. numpy का कैसे यूज हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउ इट गॉट इन्वेंटेड, एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड में. ओके, फिर उसके बाद numpy में क्या क्या रहता है, हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, सॉरी हाउ वी डिक्लेयर अ अरे, फिर अरे के एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है यूजिंग स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, राइट? फिर उसके बाद हमने देखा एक्सेस 0 1 2 एक्स वाई जेड एक्सेस, राइट? देन हमने देखा इनबिल्ट फंक्शंस क्या है, सम, ऐड, सॉर्ट, स्क्वायर रूट. ओके, तो उसी इनबिल्ट फंक्शन के टाइम पे हमने देखा कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है. then we saw some logical operations, some mathematical operations, right? logical operations में हमने देखा कि boolean masking क्या रहता है, unmasking कैसे होता है. एंड बिगेस्ट एडवांटेज ये है, हमें लूप यूज नहीं करना पड़ता. वॉट एवर द डेटा वी हैव, we don't even have to use a loop in case of numpy, and that's why it is possible using a broadcasting, right? फिर उसके बाद हमने वो masking, boolean masking, broadcasting operation, then we saw mathematical, arithmetic, add, add not only with the function but also with the symbol x plus y, a plus b, so on and so forth. Okay, so this much is uh, this much is enough for as a understanding part of numpy. uh, so from tomorrow onwards we'll start with the pandas. Okay, full-fledged, and we'll connect at the same time, 6:15 from tomorrow. Okay,
Hope everybody is clear with the number. Yes. Yes, yes. Hi. Okay. Want to say something, somebody? Okay, किसी को कुछ बोलना है? So, okay, with this, maybe we can conclude our class then. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. स्नेहल, तुम्ही मगासपासून थँक्यू म्हणायला माईक अनम्यूट केला होता का? नाही सर ते चुकून गेलं. ओके, नॉट एन इश्यू. ठीक आहे, थँक्यू. विल डिस्कनेक्ट. तुमचं 7:30